Alright, welcome to another video on Power BI and data analytics. In this video, we'll start creating the dashboard. So, where should we begin? Let's start creating the filters first, right? यहाँ जो filters है outcome, month, Q and all of that. Let's start creating those filters. और high level KPI देखते हैं कि numbers सही सही से दिख रहा है कि नहीं based on the filters you select. अब ये आइकॉन और ये सब ऑल ऑफ दैट ये थोड़ा हम बाद में देखेंगे. पहले एक डैशबोर्ड बना लेते हैं. इसका लुक एंड फील, इसको पाउडर लगाने का काम अपन बाद में करेंगे. ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स गो टू आवर अदर डैशबोर्ड जहाँ पे हम काम चालू है हमारा. लेट्स क्रिएट अ न्यू पेज. इस पेज को नाम दूंगा मैं क्रेडिट एनालिटिक्स टीम. ओके. ऑलराइट, so we want to start with creating filters. So what filters do we need? जब हम डिज़ाइन बना रहे थे तो we basically you finalize on the filters and the views and everything during the design phase. ठीक है. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रियल वर्ल्ड में डिज़ाइन पे कैसे काम करते हैं लोग, कैसे डिस्कशन होता है एनालिटिक्स बंदे का with his management and all of that. So go and watch that video. So assume करो कि सब everything is confirmed, the management liked your design and now you go back और design पे dashboard पे काम चालू कर दो. So let's start with our filters. तो credit analytics team के लिए क्या क्या filter चाहिए? Outcome, month, Q and list. इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे. Let's focus on these 4 filters. Let's go back. Okay, so the first filter you need is outcome. Filter के लिए we'll use this किधर गया वो slicer. Alright, so let's click on the first slicer and let's start creating the first filter. पहला filter outcome था. हमको पता है कि outcome का एक column है fact applications में. Let's use that. So if I click on outcome name and let's drag this here and you will see the outcome name. अब इसको थोड़ा modify कर लेते हैं. Again powder हम बाद में लगाएंगे. I'm going to change the name. अभी outcome underscore name नहीं चाहिए. I'm going to rename this to outcome. ठीक है. And then the next thing I want to do is इसको मेरे को ऐसे drop down में चाहिए, ऐसे list में नहीं चाहिए. So I'm going to change the type of this slicer. So I go to, so again, where did I go? I click on format your visual option. And then click on slicer settings and let's change this to drop down. ठीक है. और drop down में I need all करके ऑप्शन चाहिए. ऐसे नहीं चाहिए कि somebody should come and कोई भी एक ऑप्शन पे select. We need by default all these selected. ठीक है. I'll tell you what do I mean by that. So if I do selection, I need multi select और शो सिलेक्ट ऑन. सिलेक्ट ऑल जो है ना वो मुझे ऑन चाहिए. इसका मतलब यहाँ पे सिलेक्ट ऑल भी रहेगा, क्योंकि अगर मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूँ, डिक्लाइन पे क्लिक करता हूँ, विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, तो आई शुड हैव एन ऑप्शन टू सिलेक्ट ऑल. नहीं तो या तो अप्रूव दिखेगा, या तो डिक्लाइन दिखेगा, या तो विड्रॉ दिखेगा. आई थिंक यू गेट द आइडिया. दैट्स व्हाट आई वांट. ओके, हट जा भाई. ओके, नाउ लेट्स कॉपी दिस, कॉपी पेस्ट, Control C, Control V, and let's इसको थोड़ा साइड में मूव कर लेते. The next filter we need was, let's go back to our design again, month. Okay, हमने देखा था दो या तीन वीडियो पहले, we added a date dimension date table और जहाँ पे हमने month बनाया था. So let's remove outcome और यहाँ पे month ड्रैग करते हैं. और प्लीज़ साथ में करना, you don't just watch it. So let's rename this to month. ठीक है. Now month is interesting. See, month should give you all of this. Now sometimes a user may want to select 2 or 3 months at a time. तो ये single select का ऑप्शन हमको हटाना पड़ेगा. So let's go to this and slicer settings drop down. ठीक है. Selection में सिंगल सिलेक्ट ऑफ कर देता हूँ. ठीक है. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओह, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट. I need
Yeah, that's what I need. Multi-select. There you go. Okay. So now you have an option to select more than 1 month at a time, which is good. That's what I want. And I can just leave this to select all. अब इसमें एक दिक्कत है. See, कोई भी अगर यूज़र ये ओपन करेगा ना तो उसको कंफ्यूज हो जाएगा, अरे अप्रैल पहले दिख रहा है, अगस्त बाद में दिख रहा है, व्हाट द हेक इज दिस. तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. अब इसको चेंज कैसे करें ना, याद रखो ये जो लिस्ट है ना ये सॉर्टेड नहीं है. तो इसको सॉर्ट करने के लिए जिस टेबल में ये मंथ है उस टेबल को सॉर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, वो टेबल में अगर तुमने मंथ को सॉर्ट किया तो ये सॉर्ट हो जाएगा ठीक से. सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, डिम डेट में जाके मंथ को सॉर्ट करना पड़ेगा एज पर द मंथ नंबर, तब जाके ये सॉर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. एंड आई शो यू व्हाट आई मीन बाय दैट. सो टू डू दैट लेट्स गो टू टेबल व्यू एंड ओके आई एम ऑलरेडी इन डिम डेट विच इज़ गुड. अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा रहेगा सॉर्ट है, बट थिंक अबाउट इट, ये सॉर्टेड नहीं है. सो इफ आई गो क्लिक ऑन हियर यू विल सी दिस ऑप्शन सॉर्ट बाय कॉलम. सी, तो अभी ये सॉर्ट बाय कॉलम एज मंथ है. सो लेट्स सी इफ दैट नाउ इफ आई क्लिक ऑन सॉर्ट बाय कॉलम एंड देन क्लिक ऑन, लेट मी जस्ट होल्ड ऑन, it's working on it, wait for it. Okay, see nothing might change visually, but it's important that you sort this table by selecting this option. Alright, so if we do this sort by month you might not see anything visually कुछ change नहीं होगा. So let's try this option first. मैं sort by column में month लेता हूँ और फिर जाके विजुअल एक बार चेक करते एंड लेट्स सी ये सॉर्ट हुआ है कि नहीं. ना, नहीं हुआ. सो व्हाट डू वी डू, यहाँ पे एक दिक्कत है, तो गाड़ी हमारी अटक गई. तो एक तरीका है, अगर मैं और एक कॉलम ऐड करता हूँ और वहाँ पे मंथ का नंबर लेते हो, जैसे कि जनवरी इज़ 1 है ना, फेब्रुवरी इज़ 2, 3, मार्च, यू गेट द आइडिया. सो वो नंबर लाते हैं यहाँ पे और फिर इस टेबल को वो नंबर से सॉर्ट कर देंगे. एंड लेट्स सी इफ दैट हेल्प्स. सो आई एम गोइंग टू ऐड अ न्यू कॉलम. wait for it and let's call this as month number. I'm going to say month number and this will be इस मंथ का नंबर, इस डेट का जो मंथ होगा ना उसका नंबर. आई टेल यू व्हाट आई मीन. सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट डेट. कौन सा डेट, डिम डेट वाला डेट. ओके, आई एम गोइंग टू से डेट, सी डॉट, और डॉट के बाद मंथ नंबर है. लेट्स डू दैट. सो इट विल गिव यू द नंबर ऑफ दिस मंथ. जनवरी विल बी 1, फेब्रुवरी विल बी 2 एंड सो फोर्थ. यू गेट द आइडिया. नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन मंथ. अब मैं मंथ के कॉलम को क्लिक करूँगा एंड देन आई क्लिक होएगा आज. हाँ, ओके, सी मंथ इज सिलेक्टेड. नाउ आई एम गोइंग टू सॉर्ट दिस कॉलम बाय मंथ नंबर. सो आई एम गोइंग टू से मंथ नंबर. सो आई एम गोइंग टू सॉर्ट दिस मंथ कॉलम बाय दिस मंथ नंबर. सो विजुअली कुछ होगा नहीं, लाइक जनवरी पहले ही दिख रहा है, ऑलरेडी दिख रहा है. बट इफ़ यू सॉर्ट दिस टेबल बाय सॉर्ट दिस कॉलम बाय मंथ नंबर, हमारा मंथ का फिल्टर सॉर्ट हो जाएगा. सो लेट्स टेक अ लुक. सो नाउ इफ यू गो बैक टू आवर व्यू, लेट्स क्लिक ऑन दिस and you see January, February, March, April, May, June, July, August. Perfect. Now I don't know, but if there is a way to do this, but एक homework है तुमको, एक challenge. I want December first. मेरे को December पहले देखना है. Why? Latest month पहले दिखाओ और जो पुराने month है उसको drop down में नीचे डाल दो. So can you do that? Can you sort can you sort the month column in a descending order? So think about it if you can do this. But let's move on to the other filter. Outcome हो गया, month हो गया. तीसरा filter हमको क्या चाहिए था? Let's copy paste this. Okay. And तीसरा filter हमको क्या चाहिए? Q name. So हमको पता है कि fact application में we have a column called Q name. So let's click on Q name and drag it here in the field list.
एंड इसका नाम चेंज कर लेते हैं. लेट्स रीनेम दिस एंड लेट्स क्लिक ऑन, लेट्स गिव इट अ नेम कॉल्ड क्यू. क्यू की स्पेलिंग क्या है भाई? क्यू नेम. आई थिंक आई एम गेटिंग इट राइट. एक बार देख लेते. क्यू नेम का स्पेलिंग क्या है? क्यू यू ई क्या है ये? ओके, perfect. Now let's see what we get. Yep, you should allow them to select more than one queue name at a time and select all भी होना चाहिए उसमें, so which is good. Next thing is we need is analyst name. और analyst name में ना हमें देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एनालिस्ट का आईडी. व्हाट आई नीड इज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम टुगेदर. ठीक है, मैं सिर्फ फर्स्ट नेम का ऑप्शन नहीं दे सकता ना, आई नीड बोथ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. सो वी हैव टू कॉन्कैटिनेट दीज टू फील्ड्स. फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्कैटिनेट करना है, मतलब जोड़ना है बेसिकली. सो आई एम गोइंग टू गो टू द टेबल व्यू, फैक्ट एप्लीकेशन, and then I'm going to add a new column. ठीक है, just wait for it. इस कॉलम को नाम देते हम एनालिस्ट फुल नेम. ठीक है, एंड लेट्स कॉन्कैटिनेट इट. सो हमको क्या करना है, फर्स्ट नेम को कॉन्कैटिनेट करना है लास्ट नेम से. सो आई एम गोइंग टू से फर्स्ट नेम एंड साइन डालो. एंड साइन लेट्स यू जॉइन one or two more than, sorry, one or multiple columns, so one or multiple values. So फर्स्ट नेम को ज्वाइन करने वाला हूँ मैं स्पेस के साथ, फर्स्ट नेम फिर स्पेस फिर लास्ट नेम, राइट, लास्ट नेम. एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट. लेट्स हिट एंटर. तो व्हाट यू गेट इज फरदीन वादिया, ऐसे लिख के आएगा. सो जस्ट वेट फॉर इट. ओके, अब फरदीन अपर केस में दिख रहा है, वादिया लोअर केस में दिख रहा है. आई डोंट लाइक दैट. तो एक काम करते, ये सबको अपर कर देते हैं. सो अपर यूज़ करो एंड देन क्लोज द ब्रैकेट एट द एंड. अब ये नाम दो सब अपर केस में हो जाएगा. ऑलराइट, नाउ वी आर रेडी टू यूज़ दिस फील्ड एज आवर स्लाइसर, एज आवर फिल्टर. सो लेट्स गो टू आवर व्यू. ऑलराइट, सो लेट्स कॉपी पेस्ट and let's put it somewhere here. Change this to, किधर गया वो, analyst full name, like that. ठीक है, इसको नाम देते हम, let's rename this and we call it as analyst. ठीक है ना. and then let's you drop down पे क्लिक करते हैं and it should give you all the names, Asif and all of that. Good, I like that. Okay, so I think all the columns are here. अब इसके आगे क्या करना है, we will start creating the views. ये जो views है, ये जो high level KPIs है ना, ये बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. See you in the next video. Bye bye.